Hi guys, welcome back to the YouTube channel of I'm Pragraj. So let's start with the set number 11 of this particular playlist, and this is puzzle based set which I've taken from SimCat, previous year SimCats. And first pause the video, try it on your own, and then proceed with the video solution. So the set says Ajay is an expert of numbers and loves to create riddles of numbers. He went for a management exam and met Bijoy, who was also a mathematician. Ajay shared his number to Bijoy using following hints, to which Bijoy answered. Following points are known about the roll number of Ajay for his management entrance exam. It is an 8-digit number not starting with 0. In the number, 3 digits have been used 2 times while the other 2 digits have been used only once. The number formed by first and the second digit is square of the number formed by 7th and the 8th digit. Number formed by the third and the fourth digit is a product of two consecutive natural number. Sum of the two-digit natural number formed by third and fourth, sum of the two-digit numbers formed by third and fourth digit and fifth and sixth digit is a product of two consecutive natural number. ठीक है. Point number 6, number formed by third and fourth digit is 6 less than the number formed by fifth and sixth digit. Point number 7, number formed by fourth and fifth digit is an even number. Point number 8, number formed by second and third digit is not a perfect square. So basically a quant based puzzle है जहाँ पे it is checking, it is just assessing your basic understandings of number. एंड वो बस ये देखना चाह रहा है कि आपको नंबर्स से आप कितना फेमिलियर हो और नंबर्स को कैसे कैलकुलेट कर पा रहे हो. सो वेरी क्विकली लेट्स स्टार्ट विद द सॉल्यूशन पार्ट. पॉइंट नंबर 1 क्या कह रहा है? इट इज एन 8 डिजिट नंबर नॉट स्टार्टिंग विद 0. तो व्हाट आई हैव डन, आई क्रिएटेड अ स्मॉल टेबल जहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 डिजिट का नंबर है. हमें ये पता है कि 1 पे 0 नहीं आने वाला, 1 जो है 0 जो है यहाँ पे नहीं आने वाला. दैट्स इट. ठीक है, पॉइंट नंबर 1 हमने पढ़ लिया. पॉइंट नंबर 2, इन द नंबर 3 digit have been used 2 times while the other 2 digit have been used only once. तीन नंबर्स ऐसे हैं जो कि दो बार बताए गए. ठीक है, 3 digits have been used twice and 2 digit have been used once. यानी कि ये 6 नंबर हो गए और ये 2 नंबर हो गए, तो टोटल 8 नंबर आपके बन गए. ऑल्सो हमें क्या पता है, 5 अलग अलग नंबर है, 5 डिफरेंट टाइप्स ऑफ नंबर्स आर टू बी देयर इन दी गिवन दिस रो 8 वाले में. ठीक है, वो 5 कौन से नंबर है, वी हैव टू आइडेंटिफाई. एंड उनमें से 5 में से 3 ऐसे हैं जो दो बार आ रहे हैं, 2 ऐसे हैं जो एक एक बार रिपीट हो रहा है. ठीक है. Point number 3, the number formed by first and the second digit is a square of the number formed by seventh and eighth digit. Number formed by first and the second is the perfect square of seventh and eighth. Perfect square is 2 digit number और वो 0 से नहीं शुरू होना चाहिए. तो वो क्या हो सकता है? वो 16 हो सकता है, वो 25 हो सकता है, वो 36 हो सकता है, वो 49 हो सकता है, वो 81 हो सकता है और वो 64 हो सकता है. 64 एंड 81. ठीक है. और ये किसका परफेक्ट स्क्वायर है? ये है परफेक्ट स्क्वायर आपका 4 का है, ये 5 का है, ये 6 का है, ये 7 का है, ये 9 का है और ये 8 का है. ठीक. अब है क्या, सिंस वी नो कि यहाँ पे नंबर 0 से नहीं शुरू हो रहा, तो इसीलिए वी हैव एलिमिनेटेड 01, 04 एंड 09. एंड 9 के ऊपर की वैल्यू नहीं लेंगे बिकॉज 10 का परफेक्ट स्क्वायर कितना होता है? 100 होता है, और 100 क्या 3 डिजिट नंबर बनाएगा, और हमें पता है कि वी आर सपोज टू टेक ओनली 2 डिजिट नंबर. ठीक है. तो यहाँ पे अपने को पता चल गया कि यहाँ पे क्या वैल्यूज आ सकती है, 16, 25, 36, 49, 81, 64 में से कुछ एक. एंड यहाँ पे क्या आएगी? 0, 4, 5, 6, 7, 8, 9 में से एक. ऑल्सो यहाँ पे 0 आने का फिक्स है, ये तो पक्का पता चल गया बिकॉज हर जगह पे 0 तो है ही. ठीक है. पॉइंट नंबर 3 को हमने यहाँ पे यूज कर लिया. पॉइंट नंबर 4 क्या कह रहा है? द नंबर फॉर्म्ड बाय थर्ड एंड द फोर्थ डिजिट इज अ प्रोडक्ट ऑफ टू कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर. नंबर फॉर्म्ड बाय थर्ड एंड फोर्थ यानी कि इन दोनों से जो नंबर बन रहा है ये क्या है? प्रोडक्ट ऑफ टू कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर. प्रोडक्ट ऑफ टू कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर मतलब कि 1 into 2 हो सकता है विच इज 2, 2 into 3 हो सकता है विच इज 6. ठीक है. 3 into 4 हो सकता है जो कि क्या होगा? 12. 4 into 5 हो सकता है विच इज 20. ठीक है. 5 into 6 हो सकता है विच इज 30. ठीक है. 6 into 7 हो सकता है विच इज 42. ठीक है. 7 into 8 हो सकता है विच इज 56. 8 into 9 हो सकता है विच इज 72. 9 into 10 हो सकता है विच इज 90. ठीक है. 10 into 11 हो सकता है विच इज 110. तो ये कहाँ तक जाएंगे? यहीं पे रुक जाएंगे. क्यों? क्योंकि अपने को पता है ये जो है ना, ये 2 डिजिट का नंबर है. अब यहाँ पे ये वाला केस ले सकते हैं क्योंकि 0 से वो नंबर शुरू हो सकता है, मतलब 0 और 2 हो गया, 0 और 6 हो गया, ऐसा बन सकता है. बट 110 वाला केस नहीं ले सकते बिकॉज 110 यहाँ पे हम एकोमोडेट नहीं कर पाएंगे. तो हमें क्या पता है, ये जो 3 4 पे नंबर है वो नंबर कौन सा है? इनमें से कोई एक होना चाहिए, यानी कि 2 6 12 12 20 30 42 56 72 90 में से कोई एक नंबर. ठीक है.
पॉइंट नंबर 5 क्या कह रहा है, पॉइंट नंबर 4 यूज हो गया। पॉइंट नंबर 5 कह रहा है सम ऑफ द टू डिजिट नंबर फाउंड बाय थर्ड एंड द फोर्थ डिजिट एंड फिफ्थ एंड द सिक्स्थ डिजिट इज अ प्रोडक्ट ऑफ टू कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर। अच्छा, अब कह रहा है कि यार ये जो नंबर है ना, मान लेते हैं इसको ए बी और ऐसा सी और डी, यानी कि एक नंबर है जो कि है ए बी और दूसरा नंबर है सी डी। ये दोनों का जो सम है ये भी क्या है, ये है किसी दो कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर का प्रोडक्ट। ठीक है, अब वो नंबर क्या होगा जरा ये सोचते, देखो मैक्सिमम क्या हो सकता था, ये नंबर की वैल्यू 198 हो सकती है। कैसे, 99 प्लस 99। हालांकि कोई नंबर को हम 4 बार नहीं ले सकते, बट जस्ट एक समझने के लिए मेरे को क्या पता है ये कहां तक जा सकता है, 198 तक जा सकता था इन दोनों का सम। यानी कि अगर हम केसेस की बात करें तो कुछ केसेस और बन सकते हैं, क्योंकि अपने को पता है कि वो क्या बना रहा है, प्रोडक्ट ऑफ टू कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर्स, जैसे कि 10 इंटू 11। तो और क्या बन सकता है, 11 इंटू 12 भी बन सकता है, यानी कि कितना आ गया 132। ठीक है, यानी कि 12 इंटू 13 भी बन सकता है, जो कि आपका बन गया 13 टू जा 26 कैरी 2 और 13 ये 156। ठीक है, 13 इंटू 14 बन सकता है, जो कि आ गया आपका 13 4 52 कैरी 5 13 है 182। ठीक है, 14 इंटू 15 कर सकते हैं, तो ये बन जाएगा 210। अब देखो ये वाला केस तो हम नहीं ले पाएंगे, क्यों, क्योंकि इनका जो सम है वो 210 कभी भी नहीं बन पाएगा। मैक्स टू मैक्स कितना बन सकता था, 198, वो भी तब जब चारों जगह पे 99 हो। हालांकि यहाँ पे अपने को पता है कि वो 9999 नहीं आने वाला, यानी कि दी वैल्यू हैज टू बी एनीथिंग लेस देन 198। ठीक है, अब 198 में भी अगर हम बहुत ज्यादा पर्टिकुलरली करना, तो हमें क्या पता है वो रेंज क्या हो सकती है, वो 26 मतलब वो वैल्यू क्या हो सकती है, जो सम है इन दोनों का ए बी प्लस सी डी क्या बन सकता है, 26 में से 12 12 20 30 42 56 72 90 110 132 156 182 में से कोई एक। ठीक है, पॉइंट नंबर 5 को हाईलाइट कर लेता हूं क्योंकि मैंने इसको काफी यूज कर लिया। पॉइंट नंबर 6 पे आते हैं। Number found by third and the fourth digit is 6 less than the number found by fifth and sixth digit। अच्छा, यानी कि इन दोनों नंबर जो बने हैं और इन दोनों का डिफरेंस भी दिया गया है, वो क्या है 6, यानी कि सी डी माइनस ए बी की वैल्यू दी गई है 6। ठीक, अब यहां पे थोड़ा सा अपने को पॉज लेना पड़ेगा। क्यों, अपने को यहाँ पे तीन चीजें हैं जो पता चल गई है। पहला, जो ये नंबर है 3 और 4 वाला, ये किसी नेचुरल नंबर का प्रोडक्ट है। दूसरा, अपने को पता है ये जो नंबर है ये इससे 6 ज्यादा होने वाला है, और इन दोनों का जो सम है वो भी किसी का परफेक्ट किसी का प्रोडक्ट होने वाला है, किसी दो कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर का। ठीक है, अब क्या है, इन तीन पॉइंट में ही अपना पूरा आंसर निकलना चाहिए। पॉइंट नंबर 1 क्या मैं बता रहा हूँ, थर्ड और फोर्थ पे जो नंबर है वो क्या बना रहा है, वो जो नंबर क्रिएट हो रहा है वो किसी दो कंसेक्यूटिव नंबर का प्रोडक्ट है। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 कह रहा है कि वो जो फिफ्थ और सिक्स्थ वाली प्लेस पे जो नंबर है वो इन दोनों से 6 बड़ा है, प्लस 6 है। पॉइंट नंबर 3 कह रहा हूं कि इन दोनों नंबर से जो सम बनने वाला है, वो जो सम है वो भी किसी दो कंसेक्यूटिव नंबर का प्रोडक्ट होने वाला है। ठीक, और वो कौन सा हो सकता है, वो इन्हीं में से पूरी कहानियां होने वाली है। ठीक, अब बस हमें क्या करना है, इनमें से ये कहानियों को, केसेस को बस आइडेंटिफाई करके काटते जाना है। क्या निकलेगा चलो देखते हैं। इसको मैं थोड़ा सा क्लीन कर लेता हूँ। ठीक है, कौन कौन से केस मिलेंगे, क्या मैं यहाँ पे ये केस ले सकता हूँ 1 into 2। अगर मैं 0 और 2 लेता हूँ तो यहाँ पे क्या लेना पड़ेगा, 6 ज्यादा, विच इज 08। ठीक है, यानी कि इन दोनों चारों का सम मतलब ए बी प्लस सी डी क्या हो जाएगा उस केस में, 10 बन जाएगा। क्या 10 यहाँ पे कहीं पे भी आ रहा है, द आंसर इज नो। क्यों, क्योंकि उनका सम भी तो कंसेक्यूटिव दो कंसेक्यूटिव नंबर का प्रोडक्ट होना चाहिए। 10 तो यहाँ पे नहीं आ रहा है, यानी कि यहाँ पे मैं 6 कभी भी नहीं ले पाऊंगा। अच्छा, क्या मैं 6 ले सकता हूँ, 0 और 6, तो उस केस में मेरे को यहाँ पे क्या लेना पड़ेगा, 12, यानी कि 12 और 6 कितना होता है 18। अगेन 18 यहाँ पे अवेलेबल नहीं है, यानी कि ये भी नहीं ले सकता। अच्छा, क्या मैं 12 ले सकता हूँ, अगर मैं 12 लेता हूँ यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या लेना पड़ेगा, प्लस 6 विच इज 18। 12 और 18 का कितना हो जाएगा 30। ये पॉसिबल है क्योंकि अपने को 30 भी यहाँ पे नीचे है। ठीक है, 20 प्लस 6 26, सम कितना बन गया 46, विच इज नॉट अवेलेबल इन द रेंज, यानी कि ये भी केस खत्म। 5 into 6 30, 30 plus 6 36, which becomes 66, यानी कि ये भी केस अवेलेबल नहीं है। इसको इससे कॉम्प्लीमेंट मत कर लेना, ध्यान रखना मैं क्या कर रहा हूँ, 12 plus 6 18 एंड 12 plus 18 का सम 30 वो बन रहा है, क्योंकि 30 इज प्रोडक्ट ऑफ टू कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर। लेकिन 30 plus 6 36 और 36 plus 30 66 बनता है। 66 इज नॉट अ प्रोडक्ट ऑफ टू कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर। ठीक है, इसलिए मैंने वो एलिमिनेट कर रहा हूँ। अच्छा, 6 into 7 42, 42 plus 48, 42 plus 48 90,
विच इज पॉसिबल, क्योंकि 90 यहाँ पे अवेलेबल है, तो एक केस और मेरे को मिला, बन सकता है। ठीक है, 7 इंटू 8 56, 56 प्लस 6 कितना हो गया 62, 62 और 56 कितना हो गया तुम्हारा 62 और 56 होता है 52 और 60 हो गया तुम्हारा 116 और 118 पॉसिबल नहीं, क्योंकि 118 तो रेंज में है ही नहीं। ठीक, 72 और 78, 72 और 78 आ गया तुम्हारा, 72 प्लस 8 हो गया 80, 80 प्लस 70 हो गया 80 प्लस 70 हो गया 150, यानी कि ये भी तुम्हारा केस नहीं लेंगे। 90 प्लस 96 यानी कि 186, ये भी केस नहीं लेंगे। ये वाला केस लेने का कोई लॉजिक ही नहीं है, क्यों? क्योंकि 110 तो यहाँ ले ही नहीं सकते, तो ये वाले केस ही खत्म हो गए। ठीक, अब मैंने ये वाले नंबर इसलिए लिखे थे ताकि मेरे को ये समझ आ जाए कि 42 प्लस 48 वो वाले जो पॉसिबिलिटी, उनका सम का पॉसिबिलिटी के लिए मैंने ये नंबर्स लिखे थे। ठीक, बाय दिस असेसमेंट व्हाट आई हैव ऑब्जर्व्ड, आई हैव डिड्यूस्ड दैट 3 और 4 12 बन सकता है, 42 बन सकता है, यानी कि अब दो केस की वैल्यू मिल गई। एक केस मिल गया अपने को 12 और एक मिल गया अपने को 42। ठीक है, यानी कि मैं यहाँ पे 12 ले सकता हूँ, उस केस में यहाँ पे क्या आना चाहिए था 18, या तो मैं यहाँ पे 42 ले सकता हूँ, उस केस में यहाँ पे क्या आना चाहिए था 48। ठीक है, अच्छा, अब मैंने पॉइंट नंबर 4, 5, 6 यूज करके काफी ज्यादा चीजों को फिगर आउट कर लिया। अभी भी मेरे दो केसेस हैं जो बने हुए हैं। पॉइंट नंबर 7, नंबर फाउंड बाय फोर्थ एंड फिफ्थ डिजिट इज एन इवन नेचुरल नंबर। फोर्थ एंड फिफ्थ इज एन इवन नेचुरल नंबर, यार ये तो ऑड नंबर बन रहा है, यानी कि ये केस भी खत्म। अब मेरे को केस मिल गया 42 और 48 वाला, एकदम यूनिक। अब मैं यहाँ पे चीजों को थोड़ा और बेहतर कर लेता हूँ। अब मेरे को चीजें आसान हो गई हैं, क्यों? मेरे को एक पूरा नंबर वो मिल गया 42 और 48। ठीक है, चलो यहाँ पे 42 और 48 को हाईलाइट कर लेते हैं। 42 और 48। ठीक, पॉइंट नंबर 7 भी यूज हो गया। पॉइंट नंबर 8 क्या कह रहा है? नंबर फाउंड बाय सेकंड एंड थर्ड डिजिट इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। नंबर फाउंड बाय सेकंड और थर्ड डिजिट इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे क्या आ सकता है अगर हम सोचे? अभी देखो मेरे पास दो पॉइंट है जो बाकी है, पॉइंट नंबर 8 यूज करना बाकी है, पॉइंट नंबर 2 यूज करना बाकी है। ठीक है, क्योंकि मैंने उसको हाईलाइट नहीं करा था, मैं बाकी सारे पॉइंट्स को टिक करते हुए आ रहा हूँ और वो मेरे यूज हो चुके हैं। पॉइंट नंबर 2 में क्या बोला था? कोई 3 नंबर है जो 2 बार आने वाले हैं, कोई 2 नंबर है जो 1 बार आने वाला है। 3 में से एक तो 4 है, ये पन मिल गया। एक 4 है जो कि 2 बार आने वाला था, वो हमने आइडेंटिफाई कर लिया। बाकी कौन से नंबर्स हैं अभी नहीं मिला। ठीक है, अब चलते हैं थोड़ा इनका इस्तेमाल करते हैं। ये जो 16 वाले थे अपने, इनको यूज करते हैं। क्या मैं यहाँ पे 16 ले पाऊंगा? जरा ध्यान दो, अगर यहाँ पे 16 लेता हूं तो ये क्या बन जाएगा 64, और हमें क्या बोला हुआ है? सम ऑफ सेकंड एंड थर्ड डिजिट इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। 64 क्या है? 8 का परफेक्ट स्क्वायर। इससे क्या पता चला? मैं 16 नहीं ले सकता, अगर 16 नहीं लूंगा तो 4 भी नहीं ले पाऊंगा। ठीक है, क्या मैं 25 और 05 ले सकता हूँ? 25 एंड 05 सीम्स पॉसिबल, इसको रोकता हूँ, बाकी केसेस पहले चेक कर लेते हैं। ठीक है, क्या मैं 36 ले पाऊंगा? सेम लॉजिक, 36 लूंगा तो 64 यानी कि 8 का स्क्वायर बन जाएगा, विच इज नॉट पॉसिबल, तो ये भी खत्म। क्या मैं 49 ले पाऊंगा? 49 में यार प्रॉब्लम क्या है ना, अगर 49 लूंगा तो 4 3 बार आ जाएगा, और अपने को क्या पता है जो भी नंबर रिपीट होना है वो 2 ही बार रिपीट होना है, 3 बार रिपीट नहीं होना है। बाय दैट लॉजिक 49 भी एक्सक्लूड हो गया और 64 भी एक्सक्लूड हो गया। ठीक है, ऑल्सो 49 और 7 भी हट गया, ये भी हट गया। अब क्या बचा? 81 और 25, ये दो केसेस बचे। ठीक है, अब क्या बन सकता था? यानी कि यहाँ पे 81 का केस बन सकता था या 25 का केस बन सकता था। ठीक है, और यहाँ पे उस केस में 09 बनता और 05 बनता, यही दो केस बनते। अब पॉइंट नंबर 2 को जरा पढ़ लेते। पॉइंट नंबर 2 क्या कह रहा था? 3 नंबर है जो 2 बार आने। अब यार देखो, केस अगर पहला लेता हूं ना तो क्या होगा? तुम्हें कितने के नंबर मिल गए? 1 है जो एक ही बार आ रहा है, 8 है जो 2 बार आ रहा है, 4 है जो 2 बार आ रहा है, 9 है जो एक बार आ रहा है, 0 है जो एक बार आ रहा है, यानी कि बहुत सारे ऐसे नंबर मिल गए हैं जो कि एक एक बार आ रहे हैं। मतलब 4 और ऊपर वाले केस की मैं बात कर रहा हूँ, इस वाले केस की। ठीक है, यहाँ पे केवल 4 है यही है जो कि 2 बार आ रहे हैं। बाकी 8 है जो 2 बार आ रहा है, 1 है जो एक ही बार आ रहा है, 2 है जो एक ही बार आ रहा है, 0 है जो एक बार आ रहा है, 9 भी है जो एक बार आ रहा है। यानी कि यार केस नंबर जो मेरा ऊपर 81 से बना था यार, वो तो पॉसिबल बनता हुआ नहीं दिख रहा है, तो इसको थोड़ा सा जगह बना लेते हैं। ठीक है, यानी कि 25 वाला बन सकता है क्या? इसको इससे भी चेक कर लेते हैं। हो सकता है मैंने पूरा ही गलत बनाया हो, हालांकि वो पॉसिबल नहीं है क्योंकि मैं लॉजिकली नंबर्स को तोड़ते हुए आ रहा हूँ। तो मेरा आंसर 25 पे बनना चाहिए। अच्छा, 25 पे बनना चाहिए, 25 यानी कि यहाँ पे 25 को हम लिख लेते हैं। यहाँ पे क्या है? 25 यहाँ पे, 05 यहाँ पे। उस केस में क्या मिला? 25 में चेक करें, 2 है जो 2 बार आया,
5 है जो 2 बार आया, 4 है जो 2 बार आया, 8 है जो 1 बार आया, 0 है जो 1 बार आया। यानी कि ये जो 3 नंबर थे जो 2 बार आने वाले थे वो हैं 2, 5 और 4, और जो 1 बार आने वाला था वो नंबर है 0 और 8। ठीक है, आई थिंक आंसर एकदम क्लियरली मिल चुके हैं। चलो लेट्स जंप टू दी क्वेश्चन पार्ट। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है वो देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है व्हाट इज द सम ऑफ द डिजिट यूज्ड इन द अजय's रोल नंबर। सम क्या है? 5 5 2 7 7 4 11 11 2 13 13 और 4 17 17 प्लस 8 25 25 और 5 30। इनका सम कितना बन रहा है? 30 का बन रहा है। पहले का आंसर हो गया 30। विच ऑफ द फॉलोइंग डिजिट इज नॉट प्रेजेंट इन अजय's रोल नंबर। अजय के रोल नंबर में क्या नंबर अवेलेबल नहीं है? 0 है, 4 है, 2 है, 8 है जो अवेलेबल नहीं है। 2 है, 8 है जो कि सॉरी 0 है, 2 है, 4 है, 6 सॉरी 6 है जो कि अवेलेबल इसमें नहीं है। ठीक है, विच डिजिट इज एट द 6th पोजीशन। 6th पोजीशन पे क्या है अपने को क्लियर दिखाई दे रहा है, वो नंबर कौन सा है? ऑप्शन नंबर 8। व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स एट प्राइम प्लेसेस फ्रॉम द लेफ्ट। लेफ्ट से प्राइम प्लेसेस पे, लेफ्ट से प्राइम प्लेसेस मतलब ये वाला नंबर, ठीक है, ये नंबर, ये नंबर, ये नंबर। अब यार है नहीं ना, 7th पे 0 बैठा हुआ है तो इसका सम सॉरी प्रोडक्ट बताना, तो प्रोडक्ट कितना हो गया? 0। यानी कि आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सॉरी क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर हो गया 0। ठीक है, चलो दैट्स इट फ्रॉम दिस पर्टिकुलर सेट एंड कीप प्रैक्टिसिंग।